Assalamu alaikum class 4. How are you? Hope all of you will be fine. I am your social study teacher from Junior Campus High School. Difficult word according to our reading. इन difficult words को आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है. Rushing, rushing, sediment, sediment, expo, expo, crescent, crescent, deposits, deposits, pyramidal, pyramidal, phenomena, phenomena, surface, surface. Dear student, open your books. Lesson number 5, page number 31. Impact of natural factor on landform. A landform is a natural feature of the Earth's surface. There are many natural phenomena that erode and shape land. Let's read about them. जी तो आज हम पढ़ेंगे लैंडफॉर्म पर कुदरती अवामिल का असर. पहाड़, मैदान और सहरा को लैंडफॉर्म कहा जाता है. ज़मीन के हर हिस्से की एक कुदरती शक्ल सूरत होती है और जो कि वक्त के साथ साथ तब्दील होती रहती है. आज के लेसन में हम इनके बारे में पढ़ेंगे. Rivers and streams are flowing water that have a major part in changing the landscape of our earth. Rivers from high up in the mountains and start out as slow-moving stream. As the water flows down, it picks up speed. The rushing water erodes mountains and forms valleys and waterfalls. Rivers and streams carry sediments downhills, where it forms new landforms like exposed lakes, fertile plains, etc. An expo is a crescent shape like laying alongside a winding river. It is created over time as erosion and deposit of soil change the river's course. Rivers and streams are flowing water that have a major part in changing the landscape of our earth. दरिया और नहरें हमारे ज़मीन की सतह को तब्दील करने में सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं. Rivers from high up in the mountains and start out as slow-moving streams. दरिया जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, पहाड़ों से जब नीचे की तरफ बहते हैं और बाद में ये आहिस्ता से बहने वाली नदी की या नहर की सूरत इख्तियार कर लेते हैं. As the water flow down, जब दरिया ऊपर से नीचे आता है, it pick up speed, तो इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है. The rushing water erode mountain and forms valley and waterfalls. ये तेज़ी से गिरता हुआ पानी पहाड़ों की छोटे से पहाड़ों के कटाव का सबब बनता है और ये मैदानों में बहता है, वादियों में बहता है और ये आबशारों की सूरत में बहता है. Rivers and streams carry sediments down hills, where it form new landform like Expo Lake. जब दरियाओं का पानी ऊपर से नीचे की तरफ पहाड़ों से जब नीचे की तरफ गिरता है तो ये अपने साथ बहुत से सेडिमेंट्स यानी मिट्टी और रेत वगैरह जो होता है वो ले आता है. जहाँ ये एक नई लेक क्रिएट करता है, जहाँ से इसने टर्न, ये दरिया जहाँ से टर्न होते हैं ना, वहाँ पर एक नई लेक ये बना देता है जिसको एक्सपो लेक कहते हैं. मीन्स के ये एक चांद की सूरत वाली झील होती है. ठीक है. फर्टाइल प्लेन्स etc. और जो ये जगह अपना रास्ता चेंज करता है तो वहाँ पे मैदान बन जाते हैं. An expo is a crescent shape like lying alongside a winding river. दरिया अपना रास्ता जो है वो तब्दील करता रहता है तो मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार करता है. तो चांद की शक्ल की झील बनाता है जिसे एक्सपो झील कहते हैं. मैदानों में दरियाओं
के रुख मोड़ने की वजह से जो झील बनती है उसे एक्सपो झील कहते हैं। It is created over time as erosion and deposit of soil change the river course. इरोशन कहते हैं कि जो पानी के बह जाने से जो अपने साथ मिट्टी, जो पानी का बहाव अपने साथ मिट्टी ले जाता है, तो उसके नतीजे में जो एक मैदान बनता है उसे इरोशन कहते हैं। इरोशन कहते हैं चेंज द अर्थ सरफेस ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर, यानी कि पानी के बहाव से जो ज़मीन के टेक्सचर में जो चेंजिंग आती है और मैदान बनते हैं उसे इरोशन कहते हैं। और फिर जो ज़मीन, जो मिट्टी जहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, और इस तरह क्या होता है कि जब मिट्टी इकट्ठी हो जाती है तो यानी सॉइल जब हो जाती है तो रिवर्स अपना जो रास्ता होता है वो चेंज कर लेता है। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ग्लेशियर। Glacier are large body of ice that are formed in cold region. On a mountain, the weight of a heavy mass of ice causes a glacier to flow downward. As glacier move, the ice erodes the land surface and carries the broken rock and soil debris of faraway places. This result in various glacial landform like pyramidal peaks and hanging valley. A pyramidal peak is a sharply pointed mountain peak that is found when three ridges meet at a central point. A hanging valley is elevated above another valley, with one end and open to the valley below. There may be a cliff or steep formation where they meet. जी, तो अब हम समझेंगे ग्लेशियर क्या होता है, ग्लेशियर किसे कहते हैं। ठीक है, ग्लेशियर आर लार्ज बॉडीज ऑफ आइस दैट आर फॉर्म इन कोल्ड रीजन। जो कुदरती बर्फ की एक बड़ी मिकदार जो एक सर्द इलाके में बन जाती है उसे ग्लेशियर कहते हैं। On a mountain, the weight of heavy mass of ice causes a glacier to flow downward. पहाड़ों पर बहुत वजनी बर्फ का तोदा जिसे ग्लेशियर कहते हैं वो नीचे गिरने का सबब बनता है। As glacier move, जैसे ही ग्लेशियर मूव करता है, हरकत करता है, यानी कि पिघलता है, the ice erode the land surface and carries the broken rock and soil debris to far away places. जैसे ही ग्लेशियर थोड़ा मूव करते हैं, मीन्स के थोड़ा पिघलते हैं, तो ये जो इसकी जो बर्फ़ होती है ये ज़मीन की सरफेस में कटिंग करना यानी तोड़ फोड़ का शिकार करना शुरू कर देती है। इसकी छोटी सी जो पहाड़ के छोटे छोटे से पीसेस होते हैं ये उनको भी अपने साथ ले जाते हैं, और इस तरह से क्या होता है कि जो मैदान होते हैं वो थोड़े दूर हो जाते हैं। ठीक है, दिस रिजल्ट इन वेरियस ग्लेशियर लैंडफॉर्म लाइक पिरामिडल पीक्स एंड हैंगिंग वैलीज। तो इसके नतीजे में, ग्लेशियर के पिघलने के नतीजे में जो लैंडफॉर्म्स हमें मिलते हैं वो पिरामिडल पीक लाइक होते हैं और हैंगिंग वैलीज की तरह के होते हैं। अब पिरामिडल पीक्स क्या होती हैं? पिरामिडल पीक उनको चोटी को, जो एक मखरूती की शक्ल की चोटी छोड़ जाता है ना, जब ग्लेशियर पिघलता है तो उसको पिरामिडल पीक कहते हैं। और अगर वो मैदान छोड़ जाए तो उसको हम कहेंगे उसको हम कहते हैं हैंगिंग वैली कहते हैं। वैली आपको पता है ना कि जो पहाड़ों के दरमियान जो एक आबादी सी होती है उसको मैदान सा होता है जो पहाड़ों के दरमियान, उसको वैली कहते हैं। और हैंगिंग वैली उसको कहते हैं जो कि पहाड़ों के दरमियान एक लंबी सी वादी होती है, इसको हैंगिंग वैली इस तरह से कहा जाता है कि ये वैली के अंदर दूसरी वैली बन जाती है। ठीक है, जिसका एक तरफ खुला हुआ होता है, और ये ग्लेशियर के पिघलने की सूरत में बनती है, इसलिए इसको हैंगिंग वैली कहा जाता है। A pyramidal peak is a sharply pointed mountain peak that is formed when three ridges meet at a central point.
पैरामिडल पीक जो होती है बहुत नुकीली सी पॉइंटेड माउंटेन होती है जो कि तीनों तरफ होते हैं, दरमियान वाले सेंट्रल पॉइंट से मिल रहे होते हैं, इसको पैरामिडल पीक कहते हैं। और अ हैंगिंग वैली इज़ एलिवेटेड अबव एन अदर वैली। जो हैंगिंग वैली होती है वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एक वैली के साथ दूसरी वैली बन जाती है। विद वन एंड ओपन टू द वैली बिलो, जिसका एक सिरा जो होता है दूसरी वैली से मिल रहा होता है और उसके साथ वो ख़त्म हो जाती है। देयर मे बी अ क्लिफ और स्टीप फॉर्मेशन वेयर दे मीट। जहाँ पे ये एक दूसरे के साथ मिलती हैं वहाँ पे वो एक या तो किसी टीले की सूरत में होंगी और या वो अमूदी ढलवान की सूरत में होती हैं जब वो एक दूसरे से मिलती हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। आपने क्वेश्चन 2 और 3 लर्न करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।